Radha has asked, is this class will go to 12 o'clock? No, Radha, because today we have only one class, so we will take up to 11:15. So all of you, अगर आपको कोई भी डाउट है, then you can ask me. In the meantime, जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं. Sir, in your message it is written till 12 o'clock. No, I didn't write anything. ये राधा ने लिखा है कि Sir, क्वेश्चन पूछा in है कि WhatsApp group, sir, that the link. आई थिंक वो Yes, sir. गलत हो गया 10:30 होगा. to 12 o'clock. Yes, sir. वो मैंने चेंज नहीं किया. आई थिंक लास्ट टाइम वाला ही पेस्ट कर दिया है बाय चेंजिंग ओनली द डेट. डेट चेंज है कि डेट भी सेम है? डेट भी सेम होगा आई थिंक. लेट मी सी. यस, डेट इज आल्सो सेम. सर डेट 7 का है। हाँ Yes, sir. 7. वही फिर से चेंज कर देता हूँ मैं. सो 10:30 to 11. जिनके पास भी IMCRP का अकाउंट है वो सारे लोग अपना IMCRP के थ्रू ही देंगे एग्जाम. और जिनके पास नहीं है सर उनको है, मैं गूगल बहुत दिनों से ओपन नहीं किया है तो पासवर्ड भूल गया। पासवर्ड आप आई थिंक रीसेट कर सकते होगे. हाँ सर। सो ट्राई करना. मैंने मतलब ये नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल गिव एग्जाम्स इन ऑल द फॉर्मेट. मींस IMCRP पे भी अटेम्प्ट करते हैं और सेम क्वेश्चन गूगल फॉर्म पे भी अटेम्प्ट करते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैटेगराइज, मतलब कौन नया है कौन पुराना है. और फिर एक टाइम आउट सेशन भी होता है इसका, जो भी IMCRP हमारा होता है. तो अगर आप मतलब ज़्यादा लोग कॉमन एग्जाम दोगे तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि, और उसमें टाइम आउट भी हो जाता है. तो इसलिए मैं कह रहा था कि जिसके पास है वो केवल वही एग्जाम दे वहीं पे. Okay, now again I'm posting the same thing in the group and deleting the previous one. So still people are joining. Mm, आपको मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ. जस्ट वॉच द वीडियो. It is about the differences between conductors, semiconductor and insulators. Conductors, insulators, and semiconductors.
Materials are classified into conductors, insulators, and semiconductors based on their ability to conduct electricity. Materials that allow electric charges to flow through them are known as electrical conductors. Metals like silver and copper, graphite, solutions of acids, bases, and salts, ionized gases, etc., which conduct electricity, are examples of conductors. Materials that do not allow electric charges to flow through them are known as non-conductors or electrical insulators. Rubber, glass, most plastics, dry wood, diamond, etc. are examples of good insulators. Materials whose conductivity is less than that of the conductors and greater than that of the insulators are known as semiconductors. Silicon and germanium are examples of semiconductors. Have you ever wondered why diamond and graphite, the two different forms of carbon, behave differently? Diamond and graphite behave differently due to the difference in the arrangement of atoms in their solid structure. In the structures shown here, observe that in diamond, each carbon atom is bound to 4 other carbon atoms. All the 4 valence electrons are used in bond formation. Therefore, diamond is an insulator of electricity. In graphite, each carbon atom is bound to only 3 other carbon atoms. Due to this, 1 valence electron is unused in bond formation. This free electron is available for conduction. In conductors, the electrons in the outermost orbit are very weakly bound to the atom and can be freed very easily. Such electrons are called free electrons. These free electrons can easily flow when there is an electrical force. The semiconductors like germanium and silicon can be made to conduct electricity by adding impurities like beryllium and boron. So now all the people have joined. So अभी तक कहीं पे भी किसी को डाउट? No, sir. ठीक है. So my PPT is visible to all of you. Is it visible? Yes, sir. और Yes, sir. Yes. मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So we are good to. So लास्ट क्लास में हमने कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स यहाँ तक पढ़ लिया था. सो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बताइए. सर आप ये पीपीटी गूगल क्लासरूम में शेयर कर देंगे? वो तो है, ऑलरेडी शेयर्ड है. ओके सर, देख लो. ओके सर, थैंक यू सर. ओके ओके. नाउ मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं है, सो वी शुड प्रोसीड. सो इन आवर प्रीवियस क्लास हमने क्या देखा था? हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी डिस्कस किया था. इन दैट एनर्जी बैंड थ्योरी वी डिस्कस्ड अबाउट वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, forbidden energy gap. Then after that, types of material, insulator, conductor, and semiconductor. And based on the energy gap, how we can categorize between these three. We have also seen that. So now
इंसुलेटर्स, उसके बाद हमने देखा था कि इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या है, देन कंडक्टर्स, और उसमें हमने पाया था कि सिल्वर इज बेस्ट एंड कॉपर इज सेकंड बेस्ट. आफ्टर दैट सेमीकंडक्टर वी डिफाइंड, एंड सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखा हमने कि एट सर्टेन टेम्परेचर इट एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, सर एंड इफ यू इंक्रीज द, यस, सर ये बता दीजिए कंडक्शन बैंड में जो होता है सर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कहाँ से करता है? एनर्जी गेन कहाँ से करता है वो डिपेंड करता है. सपोज आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर आपके पास कंडक्टर है दैट मीन्स कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड. और अगर आप इंसुलेटर की बात करते हो तो कोई भी कंडक्शन बैंड में नहीं होते. फिर सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर कि आपका टेम्परेचर कौन सा है. अगर 0 डिग्री केल्विन है दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, एंड सर्टेन टेम्परेचर अगर आप देते हो तो इट विल go to conduction band. So जब conduction band में जाते हैं तो if you provide any external force like आप voltage देते हो certain amount of, तो अगर आप voltage देते हो then it will conduct and it will provide the proper electricity. So conduction band में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से ही नहीं होगा. अगर आपके पास कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप कंडक्टर ले लो, कॉपर ले लो, जो भी है आपके पास, तो उस कंडक्टर को अगर आप इजीली केवल हाथ से अगर छूते हो तो आपको झटका नहीं लगेगा. ठीक है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास उसका फ्लो नहीं हो रहा है उसमें. अगर उसी को आप किसी स्विच से अगर कनेक्ट कर दोगे जिसके थ्रू एक्सटर्नल वोल्टेज मिल रहा है, देन क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, एंड जो आपकी बॉडी है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंडक्टर, तो वो पास करेगा आपकी बॉडी के थ्रू. दैट्स वाई आपको झटका लगता है. क्लियर है? तो कंडक्शन बैंड में अवेलेबिलिटी से ही पॉसिबल नहीं है कि आपका आप जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करे. इट डिपेंड्स कि आप कितना एक्सटर्नल वोल्टेज और एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हो. क्लियर है डाउट? यस सर. ओके, सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. So the resistance of semiconductor decreases as the temperature increase. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टर्म पे कि कैसे सेमीकंडक्टर में जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, विच इज द बिहेवियर अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल. ये कोई एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इन आवर प्रीवियस क्लास, कि क्यों आपका सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है? एनीबॉडी? एनीवन? रिकॉल करो, लॉजिक लगाओ. Anyone from the audience? Akash, Due to Radha, the Saksham. Yes. forbidden gap. Forbidden gap. आगे एक्सप्लेन करो डिटेल. डिटेल बताओ. Valence I band. also explained it using a particular example. अगर आप रिकॉल कर पाओ तो. Anmol has written charge per unit volume increases. No, you are not giving the exact answer. Anyone? Anyone else? ठीक है, I suppose you all forgot. ओके ठीक है, फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं. सो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल होते हैं. ठीक है,
And if we talk about conductors, then there are sufficient amount of electrons available for electricity. तो जितना भी आप थोड़ा सा भी अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सटर्नल प्रोवाइड करते हो तो कंडक्टर्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस होगा. बट ऑन द अदर हैंड सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स में यू हैव टू गिव सफिशिएंट एनर्जी. ठीक है, क्यों सफिशिएंट एनर्जी? एक सफिशिएंट एनर्जी देना होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी बैंड गैप. तो अगर आप याद करो पिछले क्लास में मैंने जब डिस्कस किया था, तो बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर एनर्जी गैप डायग्राम, इसमें देखो आप जो कंडक्टर्स है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. ये दोनों मैच्ड है, सो एनर्जी गैप इज जीरो इन दिस केस. और यहाँ पे जो गैप है दैट इज वेरी स्मॉल गैप, और यहाँ पे बहुत ही वाइड गैप है. और मैंने ये भी बताया था कि इंसुलेटर्स में अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो गैप होता है वो होता है. तो एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स है वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू पास फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो इस सेमीकंडक्टर में अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट एक्सटर्नल एनर्जी देते हो, then this electron which is present in the valence band can easily move to conduction band. ठीक है, तो अब हमारे पास कंडक्टर्स में जीरो एनर्जी है, और जीरो एनर्जी है दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ है कंडक्शन बैंड में. सो अगर कंडक्शन बैंड में भीड़ ज्यादा है तो इसको आप प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो. इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, अगर आप क्यू में हो और बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, तो अगर आप पीछे से कोई एक्सटर्नल फोर्स देता है, कोई धक्का देता है, तो आप क्या करोगे, आगे वाले से टकराओगे, कोलाइड करोगे. और जब कोलाइड करोगे तो आपका जो फ्लो है वो क्या होगा, रुकेगा. मतलब आप एक फ्री फ्लो में नहीं जाओगे आगे की तरफ. ठीक है, तो दिस इज द केस इन कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इन द कंडक्शन बैंड, एंड इफ यू प्रोवाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स तो क्या होगा, वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और उनका जो फ्लो है वो फ्रीली नहीं हो पाएगा. सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट्स देन दैट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल सोर्स इफ यू आर प्रोवाइडिंग, देन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे दैट मीन्स यू आर गिविंग एक्सटर्नल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड. तो जब आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने की प्रोबेबिलिटी रखेंगे, मूव करेंगे. वो जब मूव करेंगे तो आगे भी उनके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वो उनसे कोलाइड करेंगे. और जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा कि वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे. और जब फ्रीली नहीं मूव कर पाएंगे दैट मीन्स कि दोज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग सम रेजिस्टेंस, मतलब बहुत एक रेजिस्टेंस वो पा रहे हैं जिसकी वजह से वो फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहे हैं. सो फ्री फ्लो इसमें नहीं हो पाएगा. सो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्री नहीं होगा और एक रेजिस्टेंस उसको महसूस होगा. ऑन द अदर हैंड इफ यू सी इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में क्या है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में 0 डिग्री केल्विन पे 0 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. एंड सेमीकंडक्टर इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन. तो 0 डिग्री केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में है, कोई भी मूव नहीं कर रहा. कंडक्शन बैंड में आपके 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे. जब वो टेम्परेचर दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को सरपास करेगा, ठीक है, टेम्परेचर के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को सरपास करेगा, उससे ज्यादा होगा. तो क्या करेगा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अपना तोड़ेगा एंड इट विल मूव टू कंडक्शन बैंड. अब जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो उसके पास आगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, और आपने अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया तो फ्री मूवमेंट होगा उसका. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो
रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज मींस करंट का फ्लो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? एनी डाउट? एनी No, डाउट sir. टू एनीवन? No doubt, sir. ओके, सो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि कैसे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर, और मेटल में उसका ऑपोजिट होता है। सो varying conditions like temperature and impurity content can easily alter their conductivity. अब conductivity वही flow of current कैसे हो रहा है। So ये जो conductivity है that can be increased or decreased based on these two factors. एक है आपका temperature और दूसरा है impurity content. So impurity content और temperature का क्या relation है? तो temperature मैंने बता ही दिया कि temperature पे कैसे dependency है। As you increase the temperature, resistance decreases in semiconductor. So these devices enhance, ये जो semiconductor devices हैं वो इन दो पैरामीटर्स के बेस पे आपका enhance करते हैं परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी को और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को। नाउ अगर आप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की बात करो, सो सिलिकॉन आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और प्योर सेमीकंडक्टर में जो 0 डिग्री केल्विन पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन के लिए नहीं प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये बैड कंडक्टर एक तरह से है। बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि आप जब तक एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दे रहे हो, तब तक ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे कंडक्शन बैंड में। बट इफ यू प्रोवाइड एक्सटर्नल एलिमेंट, अगर एक्सटर्नल एलिमेंट आप प्रोवाइड करते हो जिसको हम डोपिंग कहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एलिमेंट अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो सिलिकॉन स्ट्रक्चर में, तो वो क्या करेगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा सिस्टम में एंड उसकी वजह से आपका कंडक्शन होगा। वो कैसे होगा वो आगे हम देखेंगे। सो जो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी कंटेंट। ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो आपको ये दो फैक्टर्स लिखने हैं और कैसे डिपेंड करता है। लाइक टेम्परेचर पे इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो कैसे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी, वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, एंड इम्प्योरिटी कंटेंट पे भी, ठीक है। सो कैरियर जनरेशन कैन हैपन, just a moment. So carrier generation can happen due to these 4 process। ये 4 प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू कैरियर जनरेशन हो सकता है। कैरियर जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है कैरियर और होल भी हो सकता है कैरियर। कैरियर जनरेशन कैन हैपन ड्यू टू दीज 4 फैक्टर्स। एक है थर्मल एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन मीन्स एक्सटर्नली आप टेम्परेचर दे रहे हो और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर टेम्परेचर आपने दिया तो वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है जो वैलेंस बैंड में, उसको ब्रेक करेगा एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव टू कंडक्शन बैंड। उसी की तरह थर्मल एक्साइटेशन ये हो गया जो टेम्परेचर बेस है। फोटो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स का एक शॉर्ट फॉर्म फोटो आप बोल रहे हो। सो फोटो एक्साइटेशन यहाँ पे क्या है कि कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो लाइट पे रिएक्ट करते हैं। मतलब आप उन सेमीकंडक्टर्स पे लाइट दो तो लाइट से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं फोटो एक्साइटेशन। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। आप वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करो, इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे इसके थ्रू वोल्टेज से, तो क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन इन द कंडक्शन बैंड। सो ये तो आपका इजीली आपने समझ लिया। एक आपका टेम्परेचर पे है, दूसरा आपका लाइट पे है, थर्ड आपका इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पे है। नाउ लास्ट वन इज इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्या होता है? ये
आप जेनर डायोड या जेनर एक्साइटेशन हम पढ़ेंगे, जेनर एंड अवलांच, तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे ये होता कैसे है। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके पास जो भी सेमीकंडक्टर है उसमें आपने एक टेम्परेचर देके एक इलेक्ट्रॉन जनरेट किया, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपने जनरेट किया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो उसको अगर इनफ एनर्जी दे दिया जाए सो दैट अगर वो इम्पैक्ट करे, अगर कोलाइड करे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और उसके बॉन्ड को ब्रेक करे, तो क्या होगा कि वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को इम्पैक्ट आयनाइजेशन से फ्री किया। वैसे ही अब दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन पे मूव करेंगे और उसको इम्पैक्ट करेंगे, उससे कोलाइड करेंगे, और अगर सफिशिएंट एनर्जी अगर आप दे देते हो तो वो भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऐसे क्या होगा कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू इम्पैक्ट क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेकेज होगा, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन अवेलेबल होंगे इन द कंडक्शन बैंड। तो ये वाला पोर्शन हम जब जेनर डायोड या जेनर ब्रेकडाउन पढ़ेंगे तब हम इसको बेसिकली पढ़ेंगे। अभी हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी आर अवेयर ऑफ दीज थ्री। अभी तक क्लियर है सबको डाउट इन चारों में क्या कैटेगराइजेशन है? सर इम्पैक्ट वाले को बता दीजिए तो। इम्पैक्ट आयनाइजेशन में एक्सप्लेन करूंगा जब जेनर ब्रेकडाउन पढ़ाएंगे, ठीक है। ब्रेकडाउन में आपको इजीली समझ में आएगा, वहां पे पर्टिकुलर फिगर है, इसमें जो प्रोसीजर होता है वो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बस ये समझो कि ये तीन आपको क्लियर है, थर्मल, फोटो एंड इलेक्ट्रिकल। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? सर प्रीवियस पार्ट में आपने बताया कि इम्प्योरिटी कंटेंट में कैसे डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी, वो वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? वो आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं, आगे है जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे तब वो इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी मैंने बस जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि कैसे आपका डिपेंडेंसी होती है कंडक्टिविटी पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है सबको, करियर जनरेशन तक? ये चार प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप करियर जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज थर्मल एक्साइटेशन, जिसमें आप टेम्परेचर देते हो और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिए, दैट मींस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू बैंड गैप एनर्जी। अगर थ्रू टेम्परेचर आपने दिया तो इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में मूव करेगा। सेकेंड वन इज फोटो एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है कि लाइट एक आप देते हो, लाइट जो आपका लाइट अवेलेबल रहता है इन द एनवायरमेंट, और वो लाइट अगर सेमीकंडक्टर पे पड़ता है, सम सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली सेंसिटिव टू दीज लाइट्स, तो ठीक है, तो वहां पे जो आपका डिपेंड होता है वो फोटो एक्साइटेशन होता है, तो उसके थ्रू बॉन्ड ब्रेकेज होता है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, जिसमें आप वोल्टेज देते हो और बॉन्ड ब्रेक करते हो। एंड लास्ट वन इज इम्पैक्ट आयनाइजेशन, जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ इम्पैक्ट करता है और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जैसे आप मोमेंटम ट्रांसफर में पढ़ते होगे, मोमेंटम इक्वेट करते थे जब अपने फिजिक्स के क्लास में, तो मोमेंटम में आप क्या करते हो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और उसमें आप मोमेंटम इक्वेट करके आप ये बताते थे कि जो भी एनर्जी आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है वो कुछ मोमेंटम आपका ट्रांसफर करेगा जो स्टीडी आपका इलेक्ट्रॉन है, तो उसके थ्रू आप मोमेंटम ट्रांसफर करके एनर्जी ट्रांसफर करते थे, और उसके थ्रू यहाँ पे इम्पैक्ट आयनाइजेशन होता है, सो बॉन्ड ब्रेकेज होता है। तो ये इम्पैक्ट आयनाइजेशन वाला टॉपिक हम जब ब्रेकडाउन पढ़ेंगे तो उसमें मतलब क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर डायग्राम अवेलेबल है। तो अभी तक किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक में? नो सर। नो सर। ओके, सो एनर्जी गैप का मैंने जो इक्वेशन बताया था वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर्स तो क्या होगा, एनर्जी गैप डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप माइनस के साथ टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है। तो टेम्परेचर ये डिग्री केल्विन में होगा, इसको आप कभी भी सेल्सियस में लिखा होगा तो आप 273 ऐड करोगे और उसके बाद ही मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो 1.21 में से ये माइनस हो रहा है, तो एट T = 0 डिग्री केल्विन एनर्जी गैप इज इक्वल्स टू 1.21,
और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये एनर्जी गैप डिक्रीज होता जाएगा। वैसे ही जर्मेनियम के केस में भी है, और ये भी मैंने डिस्कस किया था कि इसमें एनर्जी गैप 1.21 एट t इक्वल्स टू 0 पे क्यों है और इसमें 0.78 क्यों है, क्योंकि जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है बिटवीन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम इज मोर, और इसमें डिस्टेंस क्या है, लेस एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप का एक्सप्लेनेशन था कि कैसे हमारा ये इक्वेशन आता है, और ये एग्जैक्ट इक्वेशन से हमें डिराइव करने की मतलब जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका डेरिवेशन आप मोस्ट प्रोबेबली अपने दूसरे उसमें पढ़ोगे। ठीक है, आगे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेकेंड ईयर में भी आएगा, उसमें आप ये इजिली पढ़ोगे। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन। When external electric field is applied, free electron travels within conduction band producing electron current। तो जो मैंने डिस्कस किया था कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इन द कंडक्शन बैंड एंड यू प्रोवाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स लाइक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्ट होगा और दैट विल क्या करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, नाउ वेयर एज होल ट्रेवल्स इन बैलेंस प्रोड्यूसिंग होल करंट। जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है कंडक्शन बैंड में, तो जो आपका होल होगा वो बैलेंस बैंड में ट्रेवल करेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ, अगर आप इट्स प्योर सेमीकंडक्टर की बात करो, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो प्योर सेमीकंडक्टर जहाँ पे कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, मींस कोई एक्सटर्नल एटम नहीं है प्रेजेंट, तो अगर एक्सटर्नल एटम नहीं है तो यहाँ प्योर इंप्योरिटी है, प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन मींस सारे एटम्स एक दूसरे से सिलिकॉन वाले कनेक्टेड है। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ब्रेक करेंगे उतने नंबर ऑफ होल यहाँ पे क्रिएट होंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एज वेल एज इक्वल नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल अगर प्रेजेंट है और आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन तो आपके ट्रेवल करेंगे कंडक्शन बैंड में, बट जो होल्स होंगे जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है वो आपके वैलेंस बैंड में ट्रेवल करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे होल करंट। सो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करेंगे और वैलेंस बैंड के जो होल्स हैं वो होल करंट प्रोड्यूस करेंगे। यहां तक क्लियर है? यस एनी सर। डाउट? ठीक है, नाउ टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट विल बी सम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस फ्री होल करंट, तो I टोटल विल बी इक्वल्स टू I फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस I होल, तो ये टोटल करंट की इक्वेशन हो जाएगी। As temperature increase, free electrons and holes will increase and conductivity increases। So मैंने जैसे डिस्कस किया था कि जब आपके पास प्योर सिलिकॉन एटम है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में जाएंगे और उतने ही नंबर ऑफ होल्स आपके वैलेंस बैंड में होंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेकेज इंक्रीज होगा और उसी के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज होंगे एंड दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट। ठीक है, और उसके हिसाब से जैसे जैसे आपकी करंट इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। सो इन सेमीकंडक्टर्स एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस इन तीनों का रिलेशन सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, ये हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेमीकंडक्टर में अब कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर में कैटेगराइजेशन क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है।
बिकॉज अगर आप इस प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करो तो सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जब तक आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक नहीं दे देते, फॉर एग्जांपल 1.21 इन सिलिकॉन, यहाँ पे देखो एट p इक्वल्स टू 0, अगर आप 1.21 नहीं दे देते तब तक आपके जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में बॉन्डेड है दैट विल नॉट प्रोवाइड एनी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो 1.2 जब तक आप नहीं दोगे 1.21 तब तक ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में मूव नहीं, कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करेंगे, और कंडक्शन बैंड में जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सर हाँ बताइए। सर लास्ट क्लास में मैं नहीं था सर, ये क्या है सर, n इक्वल टू p इक्वल टू ni, ये एक बार ये अभी बताऊंगा, ये अभी बताऊंगा, अभी ये पिछले क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये अभी सब स्टार्टिंग का है। अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वो सब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद अब होता क्या है कि यहाँ पे आपने जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटी मीन्स कि अदर एटम्स का, सिलिकॉन के अलावा जो अदर एटम्स हैं वो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसको एक टर्म देते हैं, नया टर्म, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो इंसर्ट करने का मतलब कि हम डोप कर रहे हैं। तो डोप करने का मतलब कि एक एक्स्ट्रा इसके अदर देन दिस सिलिकॉन हम कोई दूसरा आइटम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डोपिंग। और जब हम डोपिंग कर दिए तो अभी तो ये सारे के सारे सिलिकॉन आइटम्स थे, तो इसको हम बोलते हैं प्योर सिलिकॉन। तो उस केस में जब हमारे पास दूसरा आइटम इंट्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर। ठीक है, तो इम्प्योरिटी उसको बोलते हैं। तो जब इम्प्योरिटी होती है तो उस केस में इसका नाम चेंज हो जाता है। तो हम इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। बेसिक रीजन यही है कि हमें क्या करना है, इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। कंडक्टिविटी मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? बात क्लियर है इम्प्योरिटी और प्योर सिलिकॉन का डिफरेंस? सर सेमीकंडक्टर जितना तो- ज्यादा इम्प्योर होगा उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा, एकदम करेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। सो इंट्रिंसिक, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? Intrinsic semiconductors are those semiconductors which has only pure silicon atoms। ठीक है, जहां पे प्योर सिलिकॉन एटम हो या प्योर जर्मेनियम एटम हो या जो भी आप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो वो प्योर हो। प्योर मतलब सारे के सारे एटम्स वही हो, उससे अलग कोई भी एटम ना हो, तो उस केस में हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका क्या नाम और हो सकता है? प्योर सेमीकंडक्टर। और इसका दूसरा कैटेगराइजेशन है वो है इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक। ठीक है, यहाँ पे IM को हटा के EX कर देंगे, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो भी आपका डिवाइस है दैट मस्ट बी कंटेनिंग ओनली सिंगल एटम। सिंगल एटम, कोई भी सिंगल एटम से अगर पूरा का पूरा डिवाइस स्ट्रक्चर्ड है दैट मीन्स यू कैन कॉल इट एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो हमारे पास जो 4 ग्रुप के एटम्स हैं दैट आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। तो इन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर से अगर कोई आपका डिवाइस बना है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इनमें से कोई एक एटम, ऐसा नहीं कि सबको मिला दिया आपने, सबको नहीं मिलाना है। अगर केवल कार्बन से बना है तो भी हम बोलेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, केवल सिलिकॉन से बना है तो भी हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। तो केवल एक एटम से बना हो। नाउ इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ईच एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स टू बिकम स्टेबल। तो किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है जिसमें जो आपके सारे एटम्स है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम या कार्बन एक सिंगल एटम है, और सब एक दूसरे से बॉन्डेड है with the help of 4 covalent bonds। ठीक है,
सो स्टेबल फॉर्मेशन कब होगा? जब सारे के सारे बॉन्डेड होंगे, 4 बॉन्ड्स। नाउ एट 0 डिग्री केल्विन all valence electrons participate in covalent bond formation। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में होंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एट 0 डिग्री केल्विन कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है फॉर कंडक्शन इन कंडक्शन बैंड। सो इफ टेम्परेचर is increased, greater number of free electron hole pair will be created। so जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और वो टेम्परेचर की वैल्यू से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू द एनर्जी गैप प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर। तो अगर उस एनर्जी गैप के बराबर है उस टेम्परेचर की जो एनर्जी है, तो क्या होगा कि उससे बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की होंगी वो टूटेंगी, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आपका कंडक्शन बैंड में। सो इक्वल नंबर ऑफ होल भी जनरेट होगा आपका वैलेंस बैंड में। तो इसके थ्रू जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं, ये टर्म देते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर या EH पेयर, कैपिटल E कैपिटल H पेयर इसको बोलते हैं। सो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा और वो कंडक्शन में कॉज करेगा। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसको आप मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? सो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। तो स्मॉल n से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द कोर्स एंड होल विल बी रिप्रेजेंटेड एज p। ठीक है, सो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि n को नेगेटिव होता है और p को पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज है और होल जो आपका है वो जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वहां से ये कन्वेंशन हुआ है। सो n को इलेक्ट्रॉन एंड p को होल। नाउ Ni हम क्यों ले रहे हैं? Ni हम इसको बोलते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। सो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि जितने जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक होगा और इक्वल नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आपका नहीं आ रहा है। दैट इज वाई n इक्वल्स टू p। और ये Ni क्या है? एक कांस्टेंट इन दोनों को दे दिया गया क्योंकि ये दोनों सेम है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ, कोई डाउट है आपको? नो सर। हेलो, ठीक है। सो Ni हमने क्यों दिया इसका नाम? क्योंकि इसको जस्ट एक हमने टर्म दे दिया कि अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्यों दोनों को अलग अलग नाम दें, एक ही नाम दे देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू Ni। Ni क्या? इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो I रिप्रेजेंट्स हियर इंट्रिंसिक। ठीक है, तो इंट्रिंसिक, जब भी हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो वहां पे जो हमारा नोटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और या होल का, वो Ni होगा या Pi होगा। तो जनरली हम इलेक्ट्रॉन से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो वो Ni होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. यस ओके। सर, यस सर। नाउ ये आपका है करंट डेंसिटी। Hello, sir. Hello. ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, Sir, बताइए। sir, we use doping to make it impurities, to provide him impurities so that it can have an electron. That's what doping means. हाँ, यस। Okay. जब आप डोपिंग करते हो तो वो प्रोवाइड करता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू द डिवाइस और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन या होल, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन और होल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। Then तो extends वो it, दैट pulls it डिपेंड्स। out. सो उस पर्टिकुलर मैं उस केस को डिस्कस करूंगा। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, Okay, क्लियर sir. है? तो अभी हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक में ये आपका नोटेशन है। और करंट डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो जनरली हम यहाँ पे करंट की बात नहीं करते, जैसा कि हम रेजिस्टर में या कैपेसिटर और उसमें बात करते हैं। यहाँ पे जो करंट के मेजरमेंट का टर्म हम यूज करते हैं दैट इज करंट डेंसिटी। तो J इक्वल्स टू I बाई A, करंट पर यूनिट एरिया। इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो J इक्वल्स टू Ni। Ni आपका क्लियर है अभी कि Ni क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ फ्री होल्स।
तो एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। अगर सिलिकॉन ले रहे हो तो उसकी एट सर्टेन टेम्परेचर एक फिक्स वैल्यू होगी, और जर्मेनियम ले रहे हो तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसकी फिक्स वैल्यू होगी। नाउ हियर UN, ये UN नहीं है, ये म्यू है। जो माइक्रो वाला म्यू होता है उसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है। तो म्यू एन एंड म्यू पी, इस म्यू एन और म्यू पी को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। मोबिलिटी आपने टर्म पढ़ा होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मोबिलिटी भी आपकी एक फिक्स वैल्यू होती है, और मोबिलिटी ऑफ होल भी आपकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। दीज ऑल टर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सो एक टेम्परेचर आपकी फिक्स वैल्यू करनी पड़ेगी टू मेजर दिस पर्टिकुलर करंट डेंसिटी। तो वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे देन वी विल सी। तो म्यू एन और म्यू पी क्या है आपका? मोबिलिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल रेस्पेक्टिवली। ई आपको क्लियर है, ई तो आप बचपन से जानते हो कि ई इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ की वैल्यू पुट करनी है, जो हमेशा कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और एनी अदर पैरामीटर। तो ई आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ई क्या है? कैपिटल ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो वो आपका ई से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये टोटल एक्सप्रेशन आपका क्या है? करंट डेंसिटी का, जिसमें Ni आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स एट सर्टेन टेम्परेचर। U1 या mu1 is the mobility of electron at a particular temperature. mu2 is mobility of holes. E is electrical charge and capital A is electric field. क्लियर है सबको यहाँ तक? सर जे क्या है? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, I/A जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। No, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रिंसिक बात करेंगे। अभी तक इंट्रिंसिक पे ही क्लोज करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जिनके पास IMCRP ID है, सो दोज पीपल हैव टू गिव द एग्जाम थ्रू द IMCRP ID। आपको IMCRP ID के थ्रू एग्जाम देना है, और टाइमिंग इज अराउंड 12:30। आपका जो एंड टाइम है वो है 12:30 तक वो चलेगा। और अगर आप के पास IMCRP ID नहीं है, देन आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ गूगल फॉर्म ऑल्सो। सो जिनको भी टेस्ट देना है तो वो क्या करेंगे, या तो गूगल फॉर्म या IMCRP ID। IMCRP ID दोगे तो वो बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपके पास IMCRP ID नहीं है, देन यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्विज। ये आपका क्विज ऑल टाइम है, मतलब थ्रू आउट द डे है, कभी भी आप दे सकते हो। सही, सबको क्लियर है? किसी को डाउट? सर इलेक्ट्रोलिसिस डोपिंग करने का एक तरीका हो सकता है क्या? क्या चीज? इलेक्ट्रोलिसिस। समझ नहीं आया, क्लियर नहीं है आपकी voice। सर पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस डोपिंग करने का एक तरीका हो सकता है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस? नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है उसका प्रोसीजर। डोपिंग का एक प्रोसीजर होता है, वो आपको हायर जब Sir, by order पे X-ray we जाओगे can तब use doping or what? Sir, by using X-ray एक्सरे can we से do doping? Yeah. देखो, ये डोपिंग का एक अलग तरीका होता है, वो प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। डोपिंग का जो मतलब है वो आपको क्लियर है अभी तक? Impurities. डोपिंग का मतलब, Impurities हाँ, add करना। डोपिंग का मतलब है सिंपली कि इम्प्योरिटी आपको ऐड करना। अब Yeah. जो उसका मेथड होता है डोपिंग का, देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच वी शुड नॉट डिस्कस इन दिस क्लास, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि उसके डोपिंग कैसे करते हैं, और डोपिंग करने के डिफरेंट मेथड्स हैं।
डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आप मतलब वहां पे आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमें कोई डिस्कस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में है नहीं और उससे क्वेश्चन आएगा नहीं। बट इफ Okay. यू इंसिस्ट देन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर No, आपको sir. पढ़ना है, अगर आपके पास If it is टाइम है। not in our syllabus, we will not study it. नो नो, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बिकॉज हमें Then बस ये जानना है then कि we don't होता क्या require है। it, sir. Then we don't require it. Okay, okay, okay. So because you are CS student, then I think there is no need to discuss it right now. ठीक है, अगर आपको Okay. जरूरत पड़ेगी, अगर आपको एक्सटेंसिवली जानना होगा, then we will discuss in our separate class, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। ठीक है, जब हमें लगेगा कि बहुत सारा अभी क्लियर हो गया है, अब हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, इन दैट टाइम वी शुड डिस्कस इट। क्लियर Okay, sir. है सबको? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Now I am providing the link of quiz in our WhatsApp group. Then those people who don't have IMCRP ID, only those people can attend it. Okay, thank you. अगर आपको कोई डाउट नहीं है, if you have any doubt, then you can ask. Otherwise, we should conclude this session. Okay, thank you. Thank you all. We will meet on in our next class.